Okay. So before we practically start this SPSS analysis, uh, अभी नहीं किया है ठीक है, कम से कम नेक्स्ट लेक्चर में तो आप लोग SPSS का ट्रायल वर्जन डाउनलोड करो. अगर SPSS का ट्रायल वर्जन डाउनलोड नहीं किया तो आई विल ओनली create a PPTs for those tests which are there in your syllabus. For example, factor analysis is there, conjoint analysis is there, multivariate analysis is there, right? So I will create few slides for those analysis and I will only describe it theoretically. So if you do not do that particular thing, will be very difficult for me to cope up with the responses, kind of responses and the resources we have. So my sincere request to you all is to download SPSS trial version, from which you will at least understand how to run those tests, right? We can do it in Excel sheet also, but I am not that expert in Excel, and Excel is very complicated software in comparison with SPSS. If you download SPSS, it will be very easy for you to understand how to do statistical analysis. सर वजन करा के प्लेट में And when you talk about other kind of analysis, like you might have heard about what do you mean by t test, what do you mean by f test, what do you mean by z chi-square hypothesis testing. सुना है ना सब BRM में. Yes sir, yes sir, yes sir. So Yes, sir. टी टेस्ट काउंट कैसे करते हैं, टी टेस्ट कंपेयर कैसे करते हैं, टी टेस्ट का स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कैसे करना है. You can do it manually even, but how would you do it manually if your data set consists of 10,000, 5,000, 1,000 values? For 5, 10, 20 values, you can easily manually calculate what is the t distribution and what is its significance, but still it will take too much time. But if you do it using the SPSS software, it can be done in a fraction of minutes. Very in few seconds you can calculate what does the data says in terms of various distribution kinds, that is t distribution, z distribution, f distribution, significance of that data, that has been very easily calculated by using SPSS. So I don't know if you people take it sincerely, if you take it seriously, and next time you come up with the trial version of SPSS, I will try to do uh, something practically. If not, I have to do the completion of formalities for the completion of syllabus, that I will anyhow do, right? I will be doing it. So don't worry about that. Syllabus तो करना ही है, so पढ़ाना तो है ही मुझे. It depends on your response, what kind of efforts both of us put in together. मेरे अकेले से करने से कुछ नहीं होता है. If you download the trial version of SPSS, I will share with you all a dummy data set, a dummy Excel file which I have been creating for few research works, and that particular data set can be studied for different kind of analysis. I could have shown you what is correlation, I could have shown you what is regression, what are the requisites of using correlation and regression test, कैसे यूज करते हैं, क्या है उसके रिक्विजिट्स है, कौन सा डेटा में कोरिलेशन लगा सकते हो. That all the things I can tell you theoretically, but I know that I don't know, I mean, for how much time you people will remember those things. यहाँ बैठ के मैं आधे घंटे में समझा सकता हूँ आपको व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट इज रिग्रेशन, कितना टाइम, कितना उसका यूटिलिटी क्या है, वो कहाँ पे यूज किया जाएगा, सर मैं आपको 2 मिनट में बता सकता हूँ, बट भूल जाओगे. एंड अगर नहीं होता है स्पेसेस का तो मैं आपको 2 मिनट में बता के समझने वाला हूँ. दैट इज द लास्ट चॉइस आई लेफ्ट विथ मी. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट what do you mean by analysis, what do you mean by data analysis? Because now we are not going to discuss anything about research methodology, वो सब हमने बहुत theoretically पढ़ लिया. Now we'll talk about data analysis. Let us understand few basic requirements, few basic concepts of analysis. How many of you know that what do you mean by analysis? Analysis का मतलब क्या है? सर आई थिंक डी जो भी हमारे पास डाटा है उसको डीपली एनालिसिस करना.
अच्छा, तो एनालिसिस मतलब क्या है? Analysis means Isn't to it? हाँ, search about something in deep. isn't it to study the various properties? Isn't it to study various relationships? Isn't it to study various characteristics of the data set that whatever you have collected, right? Yes, So sir. maybe qualitative studies of data. Qualitative studies of data. Uh, Actually, it is like, you may say, like converting or Yeah. creating qualitative information out of your data set. That can also be analysis. But in technical words, in scientific words, analysis means understanding properties, understanding characteristics, understanding the relationships among various variables, among different variables which you have been collecting through your data set. आप डेटा सेट में सर्वे से डेटा कलेक्ट करते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट? उन सब क्वेश्चंस की कैरेक्टर पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड करना, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है वो स्टडी करना, isn't it? That is called as the analysis. So it's a process of studying various relationships, understanding characteristics, and identifying various properties in terms of various statistical methods, by using various statistical methods, various statistical techniques. That is called as analysis, right? Understood meaning? Yes, sir. इतना सिंपल है, हमको पता नहीं कि हम क्या करने वाले हैं। हमको इतना पता है कि डेटा एनालिसिस करना है। अरे एनालिसिस करने मतलब क्या करना है, राइट? इफ आई टेल यू दैट देयर इज अ, लेट्स सपोज योर क्लास, if I give you subject wise marks scored by all the students in your class, and I ask you to analyze this data, I ask you to go for analysis of that data, what do? You will find out this average. It's nothing but the property of that data. Average निकालना मतलब क्या है? Finding out its average is a characteristics, property. Characteristic is like finding out mean, mode, median, finding out frequencies, finding out pie charts, bar charts, table formats. That's all about talking about the properties and characteristics of data. The objectives of analyzing different data sets can vary based on the objective of your research, right? So why do you do analysis and what kind of analysis you will do? It totally depends on your research requirements, your research objectives. आपको वो डेटा से क्या ढूंढना है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको कौन सी टेस्ट लगानी है. For example, you have got few variables. For example, variables of age, income, occupation, gender, and educational qualification. For your class itself, let's discuss. आपने आपके क्लास के लिए सभी बच्चों से ये सब चीजों पे वेरिएबल्स के डेटा लिया. You all know the meaning of variable, right? You all know the meaning of variable. What do you mean by variables? You all know the scales, right? If I talk about demographic characteristics of respondents, that is age, income, education, gender, marital status, all those demographic variables, and I have taken a data of 5 different variables about your satisfaction towards the MBA program of Pune University. मैंने कौन से वेरिएबल लिए? अब आपके सर के ऊपर से बाउंस होने लगेगा धीरे धीरे, फिर भी याद रखना. मैंने कौन से वेरिएबल लिया है? 5 वेरिएबल्स लिया मैंने डेमोग्राफिक, राइट? These are age, education, income, gender, and something like that. So 5 वेरिएबल वो लिया, and I have taken 5 variables towards your satisfaction level of your MBA program from Pune University. Okay. So total variables कितने हुए? 10 वेरिएबल हो गए, राइट? इन सब का डेटा मैंने रिकॉर्ड करके लिया है सर्वे से, और मैंने कोडिंग किया है डेटा का. यू नो हाउ डू वी कोड ऑर्डिनल स्केल्स? सेटिस्फैक्शन लेवल लिया है तो मैंने कौन सा स्केल यूज किया होगा? सेटिस्फैक्शन लेवल लिया है तो मैंने कौन सा स्केल यूज किया होगा?
if I ask you what is your satisfaction level towards MBA program provided by Pune University, what is the scales I am using? What is the data scale, data measurement scale I am using? So it's a 5-point Likert scale in terms of ordinal measure. Do you know what are the measures of data scales? Data measure कैसे करते हैं? मैंने भी पढ़ाया है, PRM में भी पढ़ाया होगा. 110% I am sure. What are the scales of data measurement? मेजरमेंट ही पता नहीं है, वेरिएबल्स पता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल पता नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे एनालिसिस, राइट? When you talk about taking satisfaction level on 5-point Likert scale, that scale is ordinal scale. When you talk about studying demographic character of your respondent in terms of age, education, this all comes under the nominal scale. Yes, Devdeep, bolo. Sir, actually we have two type of scale. One is horizontal, one is vertical. And if we have to get two types of data, like we have to be weight and that weight, and another we have to just related to that weight. We have just varied to this, and we have to just measure these two type of scales, sir. And we have tally, then we have to getting the analysis of that data, sir. Okay. Horizontal scale and vertical scale, you are saying that. Yes, sir. So, okay. So, what do you mean by horizontal scale? Horizontals means that have to be going to the x-axis, and vertical is going to the y-axis, sir. Y to y, it's negative to positive, and x to x is negative to positive, sir. And we have to, same things have to be show in the bar chart, sir. When you have to be just going for the bar charts, we have also analyzed same the things. Okay. For example, if I talk about your satisfaction level towards MBA program from Pune University, and I have asked you in terms of relevance of syllabus, how much you are satisfied? Highly satisfied? Yeah, highly dissatisfied. Which kind of scale this is? Horizontal or vertical? So I have to be put in on the vertical scale. First of all, highly satisfied, and it should be, sir. It's also, sir, comparing with that. It should be comparing with the, sir, data also, sir. That how we have to find our data, our satisfaction data, sir. That it should be likely lower or like to be higher, sir. Okay. Actually, when you talk about the scales of data measurement, these scales are ordinal, nominal. There are 5, sir, I think. There are 4 scales. Right? Yes, sir. Ordinal. There are 2 scales for your quantitative data, and there are 2 scales for your qualitative data. So when you talk about the satisfaction level, that is qualitative data. But what do? You convert qualitative answers into quantitatives by assigning them numbers, right? Highly dissatisfied को आप 1 देते हो, dissatisfied को 2, neutral को 3, dissatisfied को 4, and highly satisfied को 5. So this is ordinal scale. You are ordering the responses given in terms of qualitative answers into few numbers. So the scales are generally being used to convert your qualitative information into quantitative information, right? So when you talk about the scales used in research, it is about 4 scales. And ordinal and ratio, these are similar kind of scales. Only the difference is about continuous variable or discrete variable, right? तो आप थोड़ा पढ़ लो एक्चुअली क्या है, वो सब रिपीट करते करते मेरा जो बात करना है वो रह जाएगा. मुझे सिर्फ आपको इतना समझाना है, आपको एनालिसिस करने के लिए डेटा कौन से पैरामीटर पे लिया है वो पता होना चाहिए, डेटा की कौन से स्केल लिए है वो पता होने चाहिए. अगर डेटा स्केल पता नहीं है तो आप स्केल मतलब व्हाट, समथिंग which measures, which is helpful to measure you. अगर स्केल ही पता नहीं है तो मेजर कैसे करोगे, इवेल्युएट कैसे करोगे, राइट? फॉर एग्जांपल आई हैव दिस माउस विथ मी, राइट? अब इसको मुझे मेजर करना है तो व्हाट स्केल आई हैव, आई कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ
वेट ग्राम, राइट, ग्राम में मेजर कर सकता हूँ मैं इसको। अगर मुझे वही पता नहीं है कि मुझे मेरे पास जो डेटा सेट आया है, मैंने सिर्फ आपको एक एक्सेल के कॉलम में नंबर्स लिख के दिया 1 2 3 4 5 7, वही नंबर रिपीट कर करके 1 to 10 तक के नंबर रिपीट कर करके आपको एक एक्सेल शीट में 100 कॉलम में लिख के दे दिया, एंड आई डिड नॉट टेल यू व्हाट डज इट मीन, आई डिड नॉट टेल यू हाउ इट इज बीन मेजर्ड। तो वो नंबर के साथ आप क्या एनालिसिस करोगे? देखते बैठना पड़ेगा सिर्फ उसको, इजंट इट? एट द मैक्स क्या एनालिसिस करोगे? सिर्फ देखते बैठोगे और नंबर काउंट कर सकते हो, 1 इतनी बार आया है, 2 इतनी बार आया है, बट उसका मतलब क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा, राइट? सो डेटा एनालिसिस के लिए आपको पता होना चाहिए स्केल, कौन से स्केल पे डेटा यूज किया है। आई वाज टेलिंग यू दैट you have, let's suppose you have considered few variables of your classmates on nominal data, that is age, income, and 5 variables, that is satisfaction towards MBA program by Pune University. So wo on 5 that you have taken again on 5-point Likert scale. So that scale becomes the ordinal data measurement scale, and the demographics are being on nominal. So when you try to analyze this data, you will understand by nominal data you cannot conclude anything by calculating mean of nominal data. अगर nominal data के mean निकालते हो, mean mode median निकालते हो, तो कुछ नहीं हो सकता उस डेटा का। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 लोगों को पूछा व्हाट इज योर जेंडर, उसने आपने फर्स्ट ऑप्शन दिया था 1, दूसरा ऑप्शन दिया, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन दिया था मेल, सेकंड ऑप्शन दिया था फीमेल, और 50 लोगों में से कुछ लोगों ने मेल को टिक मार्क किया, कुछ लोगों ने फीमेल को टिक मार्क किया। लास्ट में आपने दोनों का मीन निकाला, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, और दोनों का मीन निकाला। मीन आया 2 पॉइंट, लेट्स सपोज 1.78, 1.56 somewhere. What is the meaning of this data? Similar happens with your income classes. अगर आप इनकम क्लासेस को 1 2 3 4 5, 1 लाख to 5 लाख, 5 लाख to 10 लाख, 10 लाख to 15 लाख, अबाउट 20 लाख, ऐसा डालते हो, और उसको डेटा एनालिसिस करने के लिए स्पेसेस में उसके जो ऑप्शन है उसको रिकॉर्ड करते हो 1 2 3 4 5, और उसका एवरेज निकालते हो, तो क्या मतलब निकलेगा उसका? अगर आप स्पेसेस कर लिए होते ना तो मैं आपको अभी तुरंत दिखा दिया होता कि हाउ इट वर्क्स, राइट? मैं एक्सेल में भी दिखा सकता हूँ, बट आई वांट यू टू डू इट इन स्पेसेस। कर सकते हो तो करो, नहीं तो छोड़ देंगे उसको। सो दैट nominal data doesn't give you any logical outcome if you put inferential statistical tests on that. Inferential statistics means the statistics which helps you to predict few information, to inference few information from existing data. So there are 2 types of analysis. Generally 2 types of data analysis happens. One is descriptive analysis, other is inferential analysis. So when you talk about descriptive analysis, this descriptive analysis only helps you to classify, or only helps you to categorize the responses, only helps you to classify or to categorize the responses. आप सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हो, इस ग्रुप में इतने हैं, उस ग्रुप में उतने हैं, इस ग्रुप के अंदर में से लेट्स सपोज आपके पूरे 60 क्लास का डेटा लिया हुआ है हमने, तो आप ये बोल सकते हो कि 60 में से 35 मेल से, 25 फीमेल से, या फिर और अमंग 25 फीमेल्स 15 are like post graduated or 10 are like graduated. So you only can classify this data, you cannot make any inferences out of that data. आप inference कुछ नहीं निकाल सकते हो, right? So the descriptive analysis which helps you to classify the data, which helps you to categorize data among variable groups, and which helps you to represent these groups in pie charts or bar charts. परसेंटेज निकाल सकते हो, पाई चार्ट निकाल सकते हो, बार चार्ट निकाल सकते हो, इससे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव डेटा के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो। करके देखो, व्हाट आर द डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स? डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स कौन से हैं? एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सोशल क्लास, राइट, टाइप ऑफ ग्रेजुएशन। आपके पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो दैट जनरली कम्स अंडर द नॉमिनल डेटा, which is a descriptive, which is a nominal data which helps only to be classification of your characters.
कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. So that is descriptive analysis. Another is inferential analysis. आपके पास जो डेटा सेट बनता है सर्वे के बाद, आपके पास जो डेटा सेट बनता है सर्वे के बाद, उसके ऊपर आप inferential analysis कर सकते हो. It means by processing that particular data, you will come up with new inferences, new insights, new information from that data. एक तो है जो एग्जिस्टिंग है उसको आप सिर्फ फैक्ट को क्लासिफाई कर रहे हो, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग न्यू. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव फाउंड आउट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल इन योर एंटायर सर्वे, तो नया कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी निकाला है आपने. जो एग्जिस्टिंग है उसको ही आपने सिर्फ क्लासिफाई करके बताया है, उसको ही आपने सिर्फ हाईलाइट किया है यूजिंग द बार चार्ट्स एंड यूजिंग द पाई चार्ट, राइट? सो दैट इज द डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस एंड इट इज कॉल्ड एज द यूनिवेरिएट एनालिसिस. जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो यूनिवेरिएट एनालिसिस है. यूनिवेरिएट मींस यू आर यूजिंग ओनली वन वेरिएबल. एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हो. जिस एनालिसिस में आप एक ही वेरिएबल का एनालिसिस करते हो, एक ही वेरिएबल का एनालिसिस करना. फॉर एग्जांपल, फाइंडिंग आउट द एवरेज एज ऑफ योर रिस्पोंडेंट. फॉर एग्जांपल, आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा 60 लोगों को, आपका एज कितना है. आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा 60 लोगों को, आपने एज कितना है, लोगों ने लिख के दिया 20, 22, 25, 30 जो भी है, और आपने 60 का एवरेज निकाला. यहाँ पे क्या किया आपने? एक ही वेरिएबल का स्टडी किया, राइट? और उसका क्या निकाला है? एवरेज निकाला है. सो दैट हैज बिकम यूनिवेरिएट एनालिसिस. समझने का कोशिश करो. आई एम गोइंग टू टेल यू 2-3 थिंग्स टुगेदर. डिस्क्रिप्टिव, इन्फरेंशियल, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट. ये 3 चीजों का बात करने वाले आज हम. What are the things? Descriptive, inferential. Descriptive means what? Analysis which helps you only to classify or categorize your information, your responses. आपके जो भी responses सर्वे से मिले हैं उसमें क्लासिफिकेशन करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए या कैटेगराइज करने के लिए जो एनालिसिस करोगे वो आप डिस्क्रिप्टिव मानोगे. फॉर एग्जाम्पल, 60 में से कितने लोग मेल थे, कितने फीमेल थे, 60 में से कितने लोग 15 से 20 में एज में थे, उसमें से कितने लोग 20 से 25 एज में हैं, कितने 25 से अबव एज में हैं. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मेकिंग पाई चार्ट्स. इट मींस व्हाट? यू आर ओनली describing that data. You are only describing the characteristics of that data, properties of that data, right? So that is descriptive analysis. So ये याद रखना. समर इंटर्नशिप में अगर आपको लगता है, and understand, descriptive analysis is the most basic form of analysis. क्या है? This is the first thing you can do with your any kind of data. Descriptive analysis मतलब क्या है? The first thing that you can do. पहले क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो, फिर परसेंटेज फाइंड कर सकते हो, टोटल रिस्पॉन्सेस में कौन से कैटेगरी में कितने रिस्पॉन्सेस है. यही से शुरू करना पड़ेगा, isn't it? And then you can go to the mean, mode, median. And mean, mode, median, t-test, z-test, f-test, correlation, regression, all those data analysis techniques are inferential statistics, because by finding out these statistics, by finding out mean, mode, median, by finding out correlation, by finding out regression, you can conclude what is the outcome of that data. वो डेटा आपको क्या आउटकम दिखा रहा है वो कंक्लूड कर सकते हो, और उसके बेसिस पे आप कुछ लॉजिक लगा के आपके स्टडी का आउटकम निकाल सकते हो या फिर आपके स्टडी का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल यू दैट देयर इज 50% या 60% कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ रिस्पोंडेंट एंड हिज सेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स एमबीए प्रोग्राम. अगर मैं ऐसा कोई आउटकम आपको निकाल के देता हूँ, कोरिलेशन निकाल के, कोरिलेशन क्या कर रहा है? इट इज कंपेयरिंग 2 वेरिएबल्स, age and his satisfaction, isn't it? Age and his satisfaction. It is comparing 2 variables and it is giving you the correlation value, and let's suppose the correlation value is 60%. तो 60% correlation value है तो आप क्या प्रेडिक्ट करोगे? यार एज एंड सेटिस्फैक्शन में बहुत ज्यादा correlation है, तो हमको एमबीए में एडमिशन देने के टाइम पे एज का ख्याल रखना चाहिए. दैट इज द लॉजिक यू आर कमिंग आउट ऑफ योर एनालिसिस. So what you are doing? You are inferencing new information. एनालिसिस किया, वैल्यू निकाली, वैल्यू के बेसिस पे आपने इन्फरेंस निकाला, आपने प्रेडिक्शन निकाला, आपने लॉजिकल आउटकम निकाला,
That is called as the inferential analysis. And which are the techniques of inferential analysis? So when you talk about descriptive, you will have pie charts, bar charts, frequency distribution, percentage analysis, those kind of things. That is for descriptive. And descriptives are generally done for one variable, that is univariate. When you talk about exploratory analysis, inferential analysis, this inferential analysis is all about using two or more variables. So whenever you use two variables, that is called as bivariate analysis. Whenever I use the correlation between age and satisfaction towards MBA program, ऐसा हो सकता है जिसका 25 साल से अबव एज है, 5, 6, 7 year experience है, he may not feel that program is very excited because all the things might have gone through his experience. वो पहले ही पढ़ के आया होगा सब चीजें, अभी डिग्री के लिए पढ़ रहा होगा, 4 साल एक्सपीरियंस काम करके आया होगा कंपनी में, राइट? सो फॉर हिम the satisfaction or the excitement in the MBA program would not be that high, and so he will give the less satisfaction score, and the people those who are young freshers will give high satisfaction score. So we can make out that there is a relation between age and satisfaction towards the MBA program offered by Pune University. ऐसा हो सकता है, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल फाइंड आउट, अगर वहां पे 60% कोरिलेशन है, इसका मतलब है colleges has to think or university has to think of the age of respondent, when age of their students whenever they are giving advantage. तो हायर एज के लोगों को एडमिशन दोगे तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं निकलेगा. सो एज ब्रैकेट is very important while giving admissions. That kind of inference you can come up with the analysis. कुछ उतर रहा है दिमाग में? हेलो? Yes sir, definitely. समझ रहा है कुछ? दो पिछले मतलब जो BRM कुछ बेसिक्स क्लियर हो गए उनको समझेगा. आई थिंक ये तो आपको इफ्तिकार सर ने भी पढ़ाया होगा. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट, राइट? पढ़ाया था? नहीं. Yes, no? No. Okay. So when you analyze one variable of your data set, it is univariate analysis. Actually, analysis descriptive और inferential, ये analysis आप एक वेरिएबल पे भी descriptive लगा सकते हो, एक वेरिएबल पे भी आप inferential लगा सकते हो. बट दो चीजें साथ में इसलिए समझा रहा हूं, जब आप descriptive analysis करते हो तब मोस्टली एक वेरिएबल पे ही करते हो. जब आप inferential करते हो तब मोस्टली दो वेरिएबल पे करते हो, बट इन्फ्रेंशियल एक वेरिएबल पे भी किया जा सकता है. इन्फ्रेंशियल एक वेरिएबल पे भी किया जा सकता है, रेयरली, नॉट दैट फ्रीक्वेंटली. ये सब थंब रूल्स है, इसमें कोई ये नहीं कि फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है कि आप कौन सा आप सिंगल वेरिएबल पे इन्फ्रेंशियल नहीं लगा सकते हो. अगर मैं एवरेज मीन का निकालता हूँ किसी रिस्पोंडेंट सेट का, तो मैं उससे भी इन्फ्रेंस निकाल सकता हूँ. अगर उस डेटा सेट का मीन एवरेज मेरे एक्सपेक्टेड मीन से कम या ज्यादा है, बेस्ड ऑन दैट आई कैन फाइंड आउट लॉजिक, राइट? तो इन्फरेंशियल एक वेरिएबल पे भी लगा जा सकता है, बट डिस्क्रिप्टिव एक ही वेरिएबल पे लगाया जा सकता है, राइट? दो का डिस्क्रिप्टिव नहीं निकाला जा सकता है. सो in few cases that is also possible, but you will get confused if I describe all those things. फिलहाल चार चीजें अलग अलग दिमाग में रखो. There are two type of analysis. One is descriptive, another is inferential. Descriptive helps you to describe classified data. Inferential helps you to come up with new information and excavate the relationships among the new phenomenon happening in your research, right? You come up with the new phenomenon, new understanding, new knowledge. That is inferential. So univariate, where you use only one variable, bivariate, where you use two variables to study, and multivariate, where you use multiple variables in single analysis. ऐसा कौन सा हो सकता है बताओ? यूनिवेरिएट के लिए फाइंडिंग आउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ योर ऑल डेमोग्राफिक प्रोफाइल. बाइवेरिएट के लिए स्टडीइंग कोरिलेशन टेस्ट, राइट? So studying correlation test for bivariate, you will be finding out correlation between two variables.
For example, what is the correlation between the education of individual and his perception towards MBA program? हो सकता है, age of individual and his perception towards MBA program. This can be correlation kind of thing. So what do you mean by multivariate analysis? कहाँ हो सकता है? आपने कभी मल्टीपल रिग्रेशन नाम का टेस्ट सुना है क्या? Has anyone of you have heard about what do you mean by multiple regression? Yes, no? Regression test सिखाया नहीं BRM में? So when you talk about multivariate analysis, you will talk about the impact of multiple variables on one variable or impact of one variable on multiple things. For example, what is the impact of what are the factors affecting your satisfaction? What are the factors affecting your satisfaction of MBA program from Pune University? कौन से factors हैं? Or what are all the factors has significant impact, higher impact on your satisfaction? तो आपका satisfaction ये एक variable है, उसको affect करने वाले बहुत सारे factors हो सकते हैं. For example, authenticity of the course. For example, utility of the course to get job. For example, relevance of the study and relevance of the material and the syllabus provided by the university. Suitability of the content of your syllabus, right? Methods of subject delivery of your syllabus. ये सब चीजें आपके satisfaction पे affect कर सकती है. So if I want to study your satisfaction level, I have to understand your opinion about all those factors. And when I study this particular phenomenon in terms of regression model, that becomes the multivariate analysis. क्योंकि मैं एक वेरिएबल पे बहुत सारे वेरिएबल्स का क्या इम्पैक्ट होता है वो देख रहा हूँ. आपके सेटिस्फेक्शन के ऊपर कौन कौन से वेरिएबल इम्पैक्ट करते हैं और कितना करते हैं. समझ में आ रहा है? So two types in basic for analysis is descriptive and inferential, and under this you can do descriptive or you can do inferential by three ways: by univariate, bivariate, multivariate. कुछ आ रहा है दिमाग में? Yes, sir. इसको देखो जरा. This is what can be again types of data analytics. See, these are the types of analytics based on the expected outcome or based on your research design. These are the types of data analysis. These are the types of data analysis based on the research design you are adopting. For example, if you adopted descriptive research design, then you have to implement the descriptive analysis as well as inferential analysis. If you have the research design which is experimental research design, if you have a research design which is experimental research design, then you can use diagnostic research analysis, diagnostic analysis techniques. Diagnostic analysis techniques are nothing but the analysis you did to find out the cause of something, right? The cause and effect relationship. If you study cause and effect relationship, you will use diagnostic analysis, right? So and the next point is about predictive analytics. Predictive analytics, when you want to identify what is going to happen in future. So demand analysis, forecasting, potential analysis, these are few fields where you use predictive analysis techniques. So business strategies have remained fairly consistent over time. पढ़ो आप इसको.
तब तक मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट ढूंढ के लाता हूँ. एंड दी prescriptive analysis is something when you study or when you adopt applied research design. It means applied research design is something we have discussed about that also. So when you adopt a research design which is talking about specific solution for your business problem, which is talking about specific solution for your business problem, then you will go for the prescriptive analysis, and prescriptive analysis will help you. So will help you to understand what you need to do to solve that particular business issue. For example, problems related to machine breakdown, problems related to your routine maintenance, how to reduce the routine maintenance. Let's suppose you have this kind of research objective, how to reduce the routine maintenance or how to prevent the breakdown of your machineries in company. इस तरीके का अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन है तो देन यू विल गो फॉर द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड यू विल गिव प्रिस्क्रिप्शंस टू द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च. And there you will tell organization what has to be done to avoid the routine maintenance or to avoid the breakdown of your company machines in your company, right? So that is something called as the prescriptive analysis. These are based on the objectives. So next point as per your syllabus is about studying the statistical test, and which statistical test we need to study. Nitin, you want to say something? Hello Nitin, are you saying something? Are you getting my point, all of you? Any question, any doubt? कैसे बच्चे हो रहे तुम लोग? आई एम ट्राइंग टू से समथिंग. आई नो आप लोगों को बड़ा हेवी लग रहा होगा, बट आई एम सेइंग दैट एम आई रीचिंग टू यू ऑल? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर आ रहा है समझ में. उन लोगों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने प्रीवियस सेशन अटेंड किए. few of you have been a very regular students. I hope you all get the point. But इनका क्या करें जो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद पहली बार आए, उनको मुश्किल जाएगा. कोई है यहाँ पे जो एकदम नया ऑनेस्टली जरा बताओ. कोई 1-2 लोग तो होंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. बाय लुकिंग आफ्टर योर स्क्रीन आई कैन टेल यू कि कौन कौन है जो पहली बार मतलब बीच में 4-2 लेक्चर में गायब रहते हैं, जो कैजुअली कॉलेज कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कॉलेज के जैसा. एनीवन? आई जस्ट वांट टू नो योर एक्सपीरियंस. कैसा लग रहा है आपको सुन के? अभी पता चलेगा ना कि क्या चल रहा है एमबीए में. क्यों एमबीए में क्या होता है, बोलते हैं ना एमबीए में क्या होता है. अगर देखा जाए तो बहुत कुछ होता है, सीरियस लिया जाए तो बहुत कुछ होता है, नहीं लिया जाए तो कुछ नहीं होता है. फिर क्या फर्क पड़ता है? So how many of you have heard about the word correlation? यस सर सुना है. बता सकते हो आप what do you mean by correlation? Sir, like as per my knowledge, I think correlation is that relation between x and y. We can say that there is two factor. The one is x and second is y. So between the x and y, there is one relation. It is called as a correlation between x and y. Okay. Correlation का मतलब क्या है? When I say that there is a correlation between your education and your behavior. Yes sir, like there is actually a very big difference between the big relationship between education and your behavior. That if you pass from a good college और अ गुड एटमोस्फियर, आपने जहाँ से मतलब स्टडी की है, अच्छा एजुकेशन आपको मिला होगा, तो डेफिनेटली आपके नेचर में वो दिख ही जाएगा कि लाइक आपने जस्ट लेट्स से कि अगर आपने एमबीए किया है, अच्छी कॉलेज से किया है, अच्छे प्रोफेसर के पास आप पढ़े हुए हो, तो डेफिनेटली आपके बिहेवियर के अंदर थोड़ा रूडलीनेस नहीं होगा. आप अच्छी तरह से बात करोगे सबके साथ, आपका जो नॉलेज है वो दिख जाएगा. So relationship का मतलब क्या है? The impact of one thing on how another. one variable is related to another, how it is affecting The impact of one इम्पैक्ट. यस सर. the impact of one thing on another. सिंपल में समझो. कोरिलेशन में आपको एक 5 मिनट में समझा दूंगा एकदम परफेक्ट, एंड कल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा किसी वेरिएबल के लिए, राइट?
नेक्स्ट सेशन में। तो अभी कोरिलेशन का मतलब समझो। इफ आई, बहुत बार यूज होता है वर्ड, दिस इज वेरी सिंपल थिंग बट डोंट टेक इट लाइटली। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, कि कहाँ पे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, right? So Pearson was the scientist who has, statistician who has introduced this test, so it's called as Pearson's correlation, right? This particular statistics is called as Pearson's correlation and is being used in multiple statistical processes. अगर फ्रंट में भी नहीं होता है ना, तो बैकग्राउंड में पियर्सन कोरिलेशन ही यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। फॉर एग्जांपल, आप फैक्टर एनालिसिस टेस्ट भी करते हो स्टैटिस्टिक्स में, तो फैक्टर एनालिसिस के लिए सबसे पहले कोरिलेशंस ही ढूंढे जाते हैं वेरिएबल्स के, एंड बेस्ड ऑन द कोरिलेशंस अमंग दोस वेरिएबल इट प्रोड्यूसेस few another statistics called as eigen statistics, eigen value, and then it gives you the most important factors among the broad list you have put it into the analysis. मतलब कोई भी टेस्ट अगर करते हो, फैक्टर एनालिसिस भी करते हो, फैक्टर एनालिसिस का क्या मतलब है मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा आपको, क्योंकि मिक्सअप हो जाएंगी चीजें। सो स्टैटिस्टिक्स कोई भी हो, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा टाइम्स कोरिलेशन ही यूज किया जाता है, एंड इट इज मोस्ट बेसिक, समझने की कोशिश करो, मोस्ट बेसिक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक मेथड। क्या है ये? दिस इज मोस्ट बेसिक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मेथड। जैसे मैंने आपको मोस्ट बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बताया था, परसेंटेज, पाई चार्ट, बार चार्ट एंड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, राइट? दैट इज मोस्ट बेसिक डिस्क्रिप्टिव, दिस इज मोस्ट बेसिक inferential statistics, right? So correlation मतलब होता है what is the impact of one thing on another thing. अब मुझे यहाँ पे एक बात बताइए, किसी भी एक चीज का दूसरे चीज के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो कैसा हो सकता है? आइदर पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, राइट? आप आपके फ्रेंड के साथ रहोगे तो यू विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है ना, राइट? अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है, बट एक ही टाइम पे दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। सो कोरिलेशन विल आइदर हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप और अ नेगेटिव रिलेशनशिप अमंग टू वेरिएबल्स एट पर्टिकुलर टाइम। हाँ, उन्हीं वेरिएबल को आप किसी और टाइम स्लॉट पे काउंट करते हो तो इट कैन वेरी। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप बिटवीन your preference towards the ice cream flavor and availability of that ice cream flavor. अब समर में अलग प्रेफरेंस होगा, विंटर में अलग प्रेफरेंस होगा, राइट? समर में आप जो फ्लेवर अवेलेबल है वो खा लोगे, वहां पे क्या है, दी लेस कोरिलेशन है। विंटर में क्या करोगे, स्पेसिफिक है, खाना है, क्योंकि थर्ड वेरिएबल हैज बीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्टिंग ऑन योर प्रेफरेंस, राइट? The intermediary variables affects, so the time slot or this correlation is can be different on different time slots, right? Can be different on different occasions, can be different on different moments of your data analysis. अलग अलग तरीके के सर्वे लोगे, अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्सेस लोगे तो कोरिलेशन चेंज हो सकता है, बट एक ही टाइम पे considering all other factors constant, correlation value can be only positive or only negative, right? So एक तो positive correlation होगा या negative correlation होगा, right? So always remember, impact of one factor on another factor, impact of one variable on another variable, या relationship मतलब क्या है? एक छोटी सी चीज समझाता हूं, समझो हाउ यू कैन कैलकुलेट इंपैक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, जब आप सोचते हो कि कोरिलेशन मींस द चेंज बिटवीन, अंडरस्टैंड, द रिजल्ट, द चेंज बिटवीन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई वेरिएबल, द चेंज in value of y variable because of the change happened into the x variable. Let's suppose there are two variables, x and y variables, right? तो x में चेंज होने से, x में अगर x की वैल्यू में कुछ चेंज हो गया तो y की वैल्यू में कितना चेंज हो जाएगा? That talks about the relationship.
अब x की वैल्यू अगर आप चेंज करते हो तो y की वैल्यू इधर ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी, राइट? अगर x की वैल्यू में अगर आप चेंज करते हो तो y की वैल्यू इधर ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप बिटवीन योर प्रेफरेंस फॉर क्या बोल सकते हैं, कोई भी एक चीज ले लो. रिलेशन बिटवीन योर प्रेफरेंस गिवन टू टी और कॉफी. रिलेशन बिटवीन योर प्रेफरेंस गिवन टू टी. Relation between your preference given to tea and the type of climatic condition. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि correlation can be there into the satisfaction and availability of satisfaction and taste of the coffee. How much you are satisfied, it depends on the taste of, is dependent on the taste of coffee. So there is correlation between the taste of coffee and your satisfaction. या फिर योर सेटिस्फैक्शन ही बोल सकते हैं. आपका सेटिस्फैक्शन होता है ना, कॉफी पीने के बाद आप सेटिस्फाई होते हो, तो आप कितने खुश होते हो या फिर कितने डिलाइट होते हो बाय हैविंग दैट कॉफी, राइट? सो कॉफी का टेस्ट एंड आपका सेटिस्फैक्शन, कॉफी का टेस्ट एंड आपका सेटिस्फैक्शन. लेट्स सपोज द टेस्ट ऑफ कॉफी इज x एंड सेटिस्फैक्शन इज y, राइट? द चेंज इन द टेस्ट ऑफ कॉफी बाय 1 यूनिट. अगर टेस्ट 1 यूनिट से अगर अच्छा हो गया, अब यूनिट फिर बोलोगे टेस्ट का यूनिट क्या है? टेस्ट के यूनिट भी होते हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द स्केल यू आर यूजिंग टू मेजर द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम रिस्पोंडेंट. ऑर्डिनल पे रखोगे तो टेस्ट का क्या होगा? गुड, बैड, एवरेज, एक्सलेंट, ऐसा होगा वो यूनिट, राइट? सो चेंज बिटवीन द टेस्ट ऑफ कॉफी रिजल्टिंग इनटू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पर्सन हु इज हैविंग दैट कॉफी. तो टेस्ट इज एक्स फैक्टर, y is the satisfaction, and then you find out what is the relation between these two things. तो रिलेशन क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है. अगर टेस्ट होना तो पॉजिटिव ही चाहिए लॉजिकली, राइट? पॉजिटिव ही रिलेशन हो जाएगा. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द कोरिलेशन वैल्यू, ऑलवेज रिमेंबर कोरिलेशन वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to +1. कितना होता है कोरिलेशन वैल्यू? -1 to +1. मतलब क्या है? -1 to +1 क्यों? 1 इज अबाउट, कोई भी दो चीज में रिलेशन है तो कितना हो सकता है? एट द मैक्स कितना रिलेशन हो सकता है? एट द मैक्स कितना रिलेशन हो सकता है? 100%. 100% हो सकता है, राइट? इसका मतलब अगर y का वैल्यू x का वैल्यू 1 यूनिट से बढ़ गया तो y का वैल्यू भी 1 यूनिट से ही बढ़ जाएगा. दैट इज 100% कोरिलेशन. इतना ही हो सकता है, 1 यूनिट से 1 यूनिट ही बढ़ेगा, राइट? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसका वैल्यू 1 यूनिट बढ़ा है, इसका वैल्यू 2 यूनिट बढ़ गया, राइट? इफ यू कंप्यूट दैट रिलेशनशिप, so that is not possible. You can compare only the equal parameters, you can compare only the equal scales, you can compare only the equal units of measuring particular thing. So correlation में हमेशा याद रखो, correlation में हमेशा याद रखो, एक ही स्केल का डेटा यूज किया जाता है, एक ही स्केल का डेटा यूज किया जाता है, and that data should be your ordinal data, that data should be your continuous data. correlation में कौन सी वैल्यू डाली जाएगी? ओनली कंटिन्यूअस वेरिएबल डाला जाएगा. डिस्क्रीट वेरिएबल्स या फिर नॉमिनल वेरिएबल्स को आप कोरिलेशन में नहीं रख सकते हो. सो कोरिलेशन में जाएगा कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड ऑर्डिनल रेशियो डेटा, एंड द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ 1 यूनिट चेंज इन एक्स फैक्टर कैन रिजल्ट इनटू 1 यूनिट चेंज इनटू वाई फैक्टर. दैट इज व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट. मतलब कोरिलेशन एक तो 100% पॉजिटिव हो सकता है या तो 100% निगेटिव हो सकता है. सो द कोरिलेशन वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1. समझ में आ रहा है? किसी चीज का, किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इंपैक्ट 100% पॉजिटिव हो सकता है या फिर 100% निगेटिव हो सकता है. अगर x की वैल्यू 1 से बढ़ाने से y की वैल्यू 1 से नीचे आ जाती है तो दैट इज 100% निगेटिव correlation. Negative correlation indicates that the change into the value of, always remember it is unit change, the unit change into the value of x
resulting into the decrease of unit change into the value y. x की वैल्यू बढ़ाने से, x की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ाने से y की वैल्यू अगर 1 यूनिट कम हो जाती है तो दैट इज निगेटिव चेंज। और ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कहाँ पे है कोरिलेशन? फॉर एग्जांपल प्राइस एंड प्रेफरेंस। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। निगेटिव कोरिलेशन कहाँ है? प्राइस एंड प्रेफरेंस। अगर x का प्राइस बढ़ा दिया तो डिमांड, अगर x का प्राइस बढ़ा दिया तो प्राइस एंड डिमांड में निगेटिव वैल्यू है। प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो जाएगा। प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ जाएगा, राइट? सो नेगेटिव कोरिलेशंस are very much normal and are available in many relations. So there can be the positive or negative relationship, and what could be the maximum strength of positive negative is the 100%. So always remember, correlation value lies between somewhere between -1 to +1. If it is minus, then it's negative correlation. If it is plus, then it's plus relation, positive relationship. एंड दिस पॉजिटिव नेगेटिव को एक और चीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव में आती है, कोरिलेशन वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इट मींस देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर कोई कोरिलेशन वैल्यू नेगेटिव आती है, इट मींस देयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। यू नो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पता है ना? Yes, sir. राइट? अगर कोरिलेशन वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है तो इट मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। मतलब एक चेंज होगा तो दूसरा चेंज होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा कम होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है? एक्स बढ़ गया तो वाई कम होगा, राइट? एक्स बढ़ गया तो वाई कम होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इफ द वैल्यू इज नेगेटिव, इट मींस इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कितना होगा मैक्सिमम कोरिलेशन वैल्यू? -1 to +1। Yes, sir. Always remember, the standard correlation is, the correlation is called standard if the value of correlation test or if the value of correlation statistics comes equal to 1। अगर किसी वैल्यू का, किसी कोरिलेशन टेस्ट का वैल्यू 1 आ जाता है, 100% आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कोरिलेशन। सो स्टैंडर्ड कोरिलेशन कैन अगेन बी ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव स्टैंडर्ड कोरिलेशन और नेगेटिव स्टैंडर्ड कोरिलेशन, राइट? सो and the value closer to +1 indicates the increasing positive relationship between two variables, and value closer to -1 indicates the increasing negative correlationship between two variables, and 0 value indicates there is no correlation between these two things, there is no correlation between these two variables. So correlation can be of -1, +1, ranging between these two poles. Positive correlation value 1 indicates, standard correlation indicates the 100% change, 100% यूनिट चेंज। मतलब x में जितने यूनिट चेंज होंगे उतने यूनिट y में चेंज होंगे, दैट इज कॉल्ड एज वन कोरिलेशन। x में जितने यूनिट चेंज होगा उसका निगेटिव चेंज होगा y में, दैट इज निगेटिव कोरिलेशन। और x में चेंज होने से y में कुछ भी चेंज नहीं होगा, दैट इज जीरो रिलेशनशिप। कुछ वेरिएबल्स होते हैं जहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है, राइट? देयर इज नो रिलेशन अमंग दोज वेरिएबल्स, वेरी पॉसिबल, right? The mileage of your two-wheeler and your family income, does it affect? ऐसा है क्या पल्सर गाड़ी जिसका फैमिली इनकम 50 लाख का एनुअल है, उसके पास पल्सर लेके गया तो 80 का एवरेज देते हैं, और जिसका इनकम 2 करोड़ है उसके पास लेके गया तो 90 देता है? Possibly there is no relationship, zero relationship between such kind of things, right?
सो कोई वेरिएबल्स होते हैं those which are distinct variable having no relationship among each other. So that's the test of correlation. What it talks about? It talks about unitary change into one variable resulting the unitary change in any other related variable. इतना सिंपल है. Any difficulty? अब ये फॉर्मूला and it is indicated by this R, capital R, right? This correlation is indicated by R. Actually, I don't want to teach you all this manually. वो अब सॉल्व करने का जमाना गया, right? You can just get into Excel sheet, create a data sheet, करके दिखाओ क्या? हाँ सर। Yes, sir. एक second. 2 मिनट में आपको एक छोटा सा कोरिलेशन एग्जांपल करके दिखाता हूँ। एक्चुअली मेरे पास कुछ डेटा सेट्स है, दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ? नहीं सर। Yeah, it's visible. Yes, sir. Visible. sir. इसमें मैं कर पाता हूँ या नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 1 मिनट रुको, मैं आपको एसपीएसएस में करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अपन लेटेस्ट टॉपिक का अगर डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस फैक्टर्स? क्या बोल रहे हैं मैं, सुनो। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस फैक्टर्स ऑफ कोविड वैक्सीन? क्या रिपीट करो? Price factor of COVID vaccine. And the preference given to the elements of price. Marketing mix का element है ना एक price. So what is the relation between the marketing mix element price and preference given to the COVID-19 vaccine by individuals, right? इसमें क्या relation है? And वो that particular thing is for, let's suppose, for a rural people. कहा गया रे, मिल नहीं रहा है। BRM PPT आप लोग लाए नहीं ना प्रिपेयर करके, इसलिए प्रॉब्लम है। मेरे पास बहुत कुछ था दिखाने के लिए आपके लिए। मैंने कुछ किया भी था पीजीडीएम के क्लास में दिखाने के लिए। उनके साथ मैंने एक प्रैक्टिकल रिसर्च रिपोर्ट बनवाया था, पूरा के पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम रिसर्च प्रॉब्लम टू एनालिसिस ऑफ कैसे ढूंढूं उसको। हाँ, डेस्कटॉप पे रखा है मैंने। एक सेकंड में शेयर करता हूँ आपके साथ। पहले इसको हटाता हूँ, शेयर एंटायर स्क्रीन। एसपीएसएस वर्जन डाउनलोड करो बेटा, अच्छे से अच्छे पढ़ पाओगे थोड़ा बहुत। एक्चुअली देखो, इंटरेस्ट आ गया ना किसी को, ये बहुत काम की चीज़ है। इफ यू गेट टू नो अबाउट स्टैटिस्टिक्स, रिमेंबर दिस सेंचुरी एंड द बिजनेस एटमॉस्फेयर henceforth will be only for those who know data well, right? पहले कैसा था, एजुकेटेड किसको बोला जाता था? जिसको पढ़ना लिखना आता है। अब एजुकेटेड किसको बोला जाता है? जिसको कंप्यूटर चलाना आता है। कुछ दिन के बाद ऐसा होने वाला है, एजुकेटेड उसको बोला जाएगा the one who reads data, the one who knows data, the one who deals with data। सब कुछ डेटा पे आने वाला है। एक तमिल की, साउथ की कोई एक मूवी है, जरा देख लेना वो क्या है। आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट मूवी, बट देखा है मैंने। वो एड़ा एक रहता है साइंटिस्ट, प्रोफेसर ही रहता है शायद वो,
बहुत लोगों को परेशान करता है वो, इसका उसका सबका डेटा रहता है उसके पास। किसी ने देखा है कि वो मूवी? No, sir. क्या है तुम लोग, देख लेना कौन सा मूवी, ढूंढो यूट्यूब पे, अच्छा मूवी है। डेटा, फिर रिलीज कब हुए हैं? अरे नहीं इतना नहीं यार, मैं तो देखता हूँ जो रिकमेंड, आपको पता है मेरा एंटरटेनमेंट हैबिट क्या है? मुझे यूट्यूब रिकमेंडेशन में जो दिख जाता है ना, वही देख हाँ। लेता हूँ मैं। कभी सर्च करके कोई चीज देखी नहीं मैंने, बहुत रेयरली कुछ सर्च करके देखता हूँ। इतना याद नहीं है, बट वो मूवी इसके ऊपर है। दिख रहा है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। Yes, sir. दिस इज एसपीएसएस फाइल। ये इधर देखो, ये कौन सा व्यू है? वेरिएबल व्यू है। मतलब कौन कौन से वेरिएबल है, उसका कौन कौन सा स्केल है, ये सब इधर लिखा हुआ है। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, डेटा स्केल, दिख रहा है राइट कॉर्नर में, राइट? तो ये सब स्केल्स यूज किया हुआ है। ये वेरिएबल था, इसको मेजर करने के लिए कौन सी स्केल यूज किया? ऑर्डिनल, नॉमिनल, स्केल। कौन सा डेटा यूज किया, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल का नाम लिखा है, लेबल, कौन से वेरिएबल का कौन सा लेबल है, उसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए रखी है एसपीएसएस को। फॉर एग्जांपल प्लेस यू बिलोंग्स टू, एसपीएसएस को क्या समझता है? एसपीएसएस को सिर्फ डेटा समझता है, न्यूमेरिकल डेटा। क्या समझता है एसपीएसएस को? सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा। एंड व्हाई डू वी नीड स्केलिंग? बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट क्वालिटेटिव ओपिनियंस इनटू मेजरेबल क्वांटिटेटिव ओपिनियंस। यस देवदीप, बोलो। सर एक बेसिक क्वेश्चन है इसमें से। हम लोग तो डेटा कलेक्ट करते हैं सर फीडबैक से, पीपल्स फीडबैक। हाँ, सो हम लोग जब ये वाले एक्सेल शीट्स में सब डालते हैं सर, तो एक्सेल शीट का आपने जो वाला डेटा वाला जो स्केल दिखाया, उसके रिलेटेड थ्रू सर मतलब कैसे हम लोग टैली करते हैं कि दिस डेटा शुड बी जेन्युइन और नॉट? नो 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 नो, देख, डेटा जेन्युइनिटी रखना है नहीं रखना है, दैट इज टोटली रिसर्चर्स इथिकल प्रिंसिपल, राइट? रिसर्च Yes, sir. इथिक्स के बारे में मैंने इतना सारा बोला है आपको। वो तो सिर्फ रिसर्च का इथिकल प्रिंसिपल ये है कि डेटा अभी हाउ डू यू नो दैट कि दिस इज ओरिजिनल फिगर और डुप्लीकेट फिगर? वो तो मेरा जेन्युइनिटी है, मेरा इथिक्स है कि मैंने ओरिजिनल यूज किया, डुप्लीकेट यूज किया है, राइट? उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है जेन्युइनिटी को। हाँ, ये डेटा कहाँ से आया है वो मैं आपको बता सकता हूँ। कितने 65 रिस्पॉन्सेस है, राइट? Yes, sir. ये रिस्पॉन्सेस का लिंक शायद आपके पास भी आया होगा, आप लोगों के ग्रुप में भी इसका लिंक भेजा था मैंने गूगल सर्वे के लिए, राइट? सो आई हैव क्रिएटेड द गूगल सर्वे in which I have got responses in this form. ये थे रिस्पॉन्सेस, गूगल सर्वे के ये रिस्पॉन्सेस थे। एक्चुअली ये 1 2 3 4 5 में नहीं मिले थे। ये जो इसका ओरिजिनल रिस्पॉन्स दिखाओ क्या तुमको? रुको, अभी तुम लोग बहुत पीछे पीछे लेके जाते हो मुझे बेसिक्स में। सर मैं तो अकेले आपको पीछे पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, ठीक है ना, तुमको समझना ज्यादा जरूरी है, वही इंपॉर्टेंट है, पीछे लेके जाना इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं। बट ये क्यों है? अगर आपने इसमें से डाउनलोड कर लिया होता तो मैंने ये फाइल आपको शेयर करके इसका पूरा हिस्ट्री समझा दिया होता पहले, एंड फिर आपने मेरे साथ साथ आपको मैंने आपके स्क्रीन पे टेस्ट करने को बोला होता, राइट? Yes, sir. तो लुक एट दिस, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हमने बनाया था कंज्यूमर परसेप्शन टुवर्ड्स कोविड-19 वैक्सीन। एक्चुअली ये गलत है, हाँ वैक्सीन। तो हमने क्या किया था, इसको मैं व्यू मोड में लेके जाता हूँ। अभी 15 मिनट में खत्म हो गया नहीं पता नहीं, चलो देख लो, फिर बाद में बात करते हैं। लुक एट दिस, ये सर्वे हमने क्रिएट किया था। हमारा प्रॉब्लम क्या था? वी वांटेड टू स्टडी व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स कोविड-19 वैक्सीन। हमको क्या करना था? परसेप्चुअल स्टडी करनी थी, राइट? हमने क्या किया? परसेप्शन स्टडी करने के लिए सर्वे बनाया। सर्वे में हमने क्या क्वेश्चन पूछे? ये तो कॉमन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तो लेने पड़ते हैं आपको, राइट? टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑन हिज परसेप्शन। Yes, sir. So your income, your educational qualification, your residential status, everything will have impact on your perception, right? Yes, sir. अगर आप दिल्ली में रहते हो तो you will think differently. अगर आप किसी remote area में रहते हो तो you will think differently. So location matters, right? Your location matters.
योर जेंडर मैटर्स, योर एज मैटर्स। 18 से ऊपर लिया है क्योंकि 18 से नीचे को वैक्सीन अलाउड नहीं था, और है भी तो दे आर नॉट एबल टू गिव ओपिनियन, उनको ओपिनियन वैलिड नहीं है लीगली, राइट। Yes, sir. 18 से नीचे वाले का ओपिनियन वैलिड नहीं रहता है, सो रिसर्च में नेवर गिव देम अ वैल्यू, राइट। सो व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, मैरिड, सिंगल, व्हाट इज योर फैमिली इनकम, ये सब डाला, बिकॉज ऑल दोस थिंग्स विल हैव इम्पैक्ट ऑन योर परसेप्शन। व्हाट इज योर करंट ऑक्यूपेशन, सो ये ऑक्यूपेशन का भी इम्पैक्ट रहेगा। अब सैलरीड है, मैं सैलरीड हूँ, मेरे ऑफिस ने मुझे कंपल्सेशन कर लिया तो मैंने वैक्सीन ले लिया, आज ले लिया, Yes, sir. राइट। तो दैट इज ऑक्यूपेशनल इम्पैक्ट विल आल्सो हैव। मेरा एजुकेशन का फर्क पड़ेगा, पढ़ा लिखा हूँ तो वैक्सीन के बारे में निगेटिव ज्यादा नहीं सोचूंगा, अंधश्रद्धा में फंसूंगा नहीं, आई विल गो फॉर वैक्सीन। देन विच वैक्सीन ब्रांड यू विल प्रेफर, तो वो थोड़ा सा ब्रांड का भी फर्क रहेगा, तो वो क्वेश्चन भी लिया। अब क्या है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्ट्स। मुझे अगर मेरे इंडिविजुअल का परसेप्शन ढूंढना है तो मुझे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बारे में ही ढूंढना पड़ेगा। Yes, sir. तो मैंने सिंपल वे में क्या किया, 7 ग्रुप में उसको क्लासिफाई किया। एक प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स लिस्ट कर लिए, फिर लिया प्राइस, फिर प्राइस रिलेटेड फैक्टर्स लिस्ट कर लिए, फिर लिया डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा कर करके 7 एलिमेंट के फैक्टर्स मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। आपको चाहिए तो ये लिंक आप देख लेना, या फिर मैं फिर से शेयर कर दूंगा, राइट। भेज दीजिए सर मेरे को। तो Share कर ये दीजिए। भेज दूंगा मैं। ये यहाँ पे आया वैक्सीनेशन सेंटर के फैसिलिटीज तक, मतलब कहा फिजिकल एविडेंस तक, राइट। मैंने ऐसे Yes, sir. पैरामीटर्स लिए 7 एलिमेंट्स पे जिसका परसेप्शन पे इम्पैक्ट हो। देखो, वैक्सीनेशन सेंटर हैज प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, इम्पैक्ट तो होगा ना। अगर वैक्सीनेशन सेंटर में सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा नहीं है तो आई विल बी नेगेटिवली परसीविंग अबाउट द वैक्सीनेशन, राइट। Of course, sir. एंड मैंने इसका क्या किया, मुझे फैक्ट स्टडी करने के लिए ऑर्डिनल स्केल पे उनका एग्रीमेंट लेवल लिया सभी पॉइंट्स के लिए। मतलब ये 7 चीजों के बारे में मैंने ऐसे कुछ सेंटेंस फ्रेम किए, 7 एलिमेंट्स के बारे में, मार्केटिंग एलिमेंट्स के बारे में, जो कस्टमर का परसेप्शन मेजर करते हैं, और उसके लिए मैंने उनका एग्रीमेंट लेवल लिया। तो उसके ऊपर मुझे पता चलेगा कि ये कितने एग्री है। बहुत ज्यादा एग्री है तो दे आर पॉजिटिव परसीविंग, राइट। अगर कम एग्री आते हैं तो निगेटिवली परसीविंग। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर परसेप्शन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर परसेप्शन एंड देयर प्रेफरेंस टू कोविड-19 वैक्सीन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था, सिंगल वेरिएबल विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, the possibility of individual to go for vaccination। तो क्या लिखा है, I am going to take COVID-19 vaccination as soon as possible and available, right। तो इसका मतलब क्या है, इस पे मैंने स्ट्रांगली एग्रीमेंट तक लेवल लिया है, डिसएग्री तो एग्री लिया। अगर ये यहाँ पे जाता है, इसका मतलब यहाँ पे ये 3 के ऊपर कहीं पे भी रिस्पॉन्स आता है, और ऐसे 500 रिस्पॉन्स मुझे मिलते हैं, मैं एवरेज निकालता हूँ, वो 3.5, 4 के आसपास जाता है। इसका मतलब मेरा इंफरेंस क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर वैक्सीनेशन, राइट। ये मेरा यूनिवेरिएट एनालिसिस होगा एक वेरिएबल का। अगर मुझे ये देखना है कि उनके प्राइस फैक्टर में और उसके प्रेफरेंस में कितना रिलेशनशिप है, कौन से फैक्टर में, प्राइस फैक्टर में, फिर मैं प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन सबके लिए अलग अलग देख सकता हूँ, सबके लिए एक साथ भी देख सकता हूँ मल्टीवेरिएट एनालिसिस करके। समझ पा रहे हो, Yes, sir. राइट। तो मुझे ये देखना है कि ये प्रेफरेंस वाला फैक्टर और प्राइस वाला फैक्टर दोनों में कितना रिलेशनशिप है। कोरिलेशन टेस्ट पढ़ रहे हैं हम, फिलहाल कोरिलेशन के लिए देखते, राइट। तो मैं समझाता हूँ आपको। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फॉर्म बनाया। तो इस फॉर्म बनाने के बाद मुझे रिस्पॉन्सेज मिले। कितने रिस्पॉन्सेज मिले मुझे, 65 रिस्पॉन्सेज मिले। अब ये रिस्पॉन्सेज मुझे एक्सेल शीट के फॉर्म में मिले, मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, राइट। अब यहाँ उधर SPSS का फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गया इधर नीचे। तो ये जिप में आया, इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि कौन से फॉर्म में आते हैं रिस्पॉन्सेज। आपने देखा भी होगा, फिर भी कुछ लोगों ने नहीं देखा तो देख लो। तो ये इस फॉर्म में रिस्पॉन्सेज कलेक्ट हो गया, राइट। ये क्या है, टाइम, कौन से टाइम स्लॉट पे आया, किसने दिया, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये वो, फिर ये पोस्ट ग्रेजुएट, तुम जो भी सिलेक्ट किया ये ऐसा है। ये गमिड़ी रमेश बाबू, इसने जो सिलेक्ट किया वो ये उसका पूरा रिस्पॉन्स है ये, राइट। तो ये स्ट्रांगली एग्री हर वेरिएबल का यहाँ पे देखना, हर वेरिएबल के लिए आपके पास अलग अलग रिस्पॉन्स आ गए। तो अब देखो SPSS को ये तो सब समझता नहीं है, ये मतलब ये क्वांटिटेटिव डेटा तो उसको समझता नहीं है। तो मैंने क्या किया, मेरे फॉर्म में
मैंने मेरे फॉर्म में मैंने ये जो ऑप्शंस दिए हैं उसको नंबरिंग कर दिया. व्हाट इज योर करंट ऑक्यूपेशन? 1 मतलब स्टूडेंट, 2 मतलब एम्प्लॉय, 3 मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, 4 मतलब प्रोफेशनल, राइट? क्योंकि एसपीएसएस को समझता नहीं है इसका मतलब क्या है, उसको तो 1 2 3 में समझेगा. यस, नो. Yes, sir. एंड फिर मैंने इसको क्या Yes, किया, sir. स्ट्रांगली डिसएग्री मतलब 1 2 3 4 5. ऑर्डिनल स्केल, इट्स अ रेटिंग स्केल, सो हायर रेटिंग इज पॉजिटिव. इट्स अ रेटिंग स्केल, इट्स नॉट रैंकिंग स्केल. रैंकिंग में क्या होता है, रैंकिंग, लोअर रैंकिंग इज द बेस्ट रैंकिंग एंड हायर रेटिंग इज द बेस्ट रेटिंग, राइट? रेटिंग में बेस्ट चाहिए होता है हमको, 5 स्टार रेटिंग चाहिए होती है, और रैंकिंग में 1 नंबर रैंक चाहिए होता है, राइट? Yes, sir. उस हिसाब से मैंने इसको 1 2 3 4 5 किया. अब आप एसपीएसएस में देखो इसका वैल्यूएशन कैसे किया. यहाँ पे क्या है, वेरिएबल व्यू. पहला वेरिएबल क्या था, दिस वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव. प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे हम, राइट? Yes, sir. तो इसको मैंने वैल्यू क्या दिया, 1 इज इक्वल टू स्ट्रांगली डिसएग्री, 5 इज इक्वल टू एग्री, ओके कर दिया. अब एसपीएसएस को पता है किसी ने अगर इस वेरिएबल के लिए स्ट्रांगली एग्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 नहीं. तो मीन निकालना एसपीएसएस के लिए इजी हो गया, सॉफ्टवेयर के लिए, राइट? तो ये वैल्यूज देनी पड़ती है यहाँ पे. फिर ये हर चीज की वैल्यू दिया हुआ है, रूरल अर्बन 1 2, फिर यहाँ पे आपका इनकम क्लास 1 2 3 4 5, ये सब किया हुआ है. इसके Yes, sir. सबके वैल्यू दिए. दो ऑल द डेटा इन एसपीएसएस शीट इज इन 1 2 3 4 फॉर्म. नाउ एसपीएसएस नोज इसमें से 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है. समझा, Yes, sir. राइट? Yes, अभी हमको क्या Yes, sir. करना है, अभी हमको फाइंड करना है कोरिलेशन. कोरिलेशन बिटवीन व्हाट? कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस एलिमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एंड द प्रेफरेंस गिवन टू वैक्सीनेशन. प्राइस एलिमेंट कौन कौन से हैं? ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस एलिमेंट है, राइट? तो ये प्राइस एलिमेंट कितने हैं? 5. 1 2 3 4 5. ये 5 में, ये 5 का, ये पांचों का इसके साथ कितना कोरिलेशन है, ये हमको ढूंढना है. यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो यहाँ पे चलो, अभी ये एसपीएसएस फाइल है, अब यहाँ एनालिसिस में जाओ, इसको बोलो हमको क्या चाहिए, कोरिलेशन चाहिए. कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कहीं लिखा है, हाँ कोरिलेशन होता है, ये कोरिलेशन, राइट? बायवेरिएट कोरिलेशन मतलब 2 वेरिएबल्स के बीच में चाहिए, राइट? तो क्या होगा, क्या था हमारा ऑब्जेक्ट, क्या था, प्राइस एंड प्रेफरेंस गिवन टू वैक्सीनेशन, राइट? सो द प्रेफरेंस Yes, sir. गिवन टू वैक्सीनेशन कौन सा, ये आई एम गोइंग टू टेक कोविड-19 वैक्सीनेशन, राइट? उसको हमने Yes. एनालिसिस में लिया. फिर इसमें से हमको क्या लेना था, प्राइस रिलेटेड. अब प्राइस रिलेटेड कहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से ढूंढना पड़ेगा हमको, गलत वेरिएबल ना आ जाए उस लिस्ट से, राइट? तो प्रोडक्ट देन प्राइस. कोविड-19 वैक्सीन इज वैल्यू ओवर वैल्यू, वहां से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर गिविंग कोविड-19 वैक्सीन ऑन गवर्नमेंट प्राइस, वहां तक 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट प्राइस के हैं. सो वैक्सीन इज ओवर वैल्यूड, कोविड-19 वैक्सीन इज ओवर वैल्यूड, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर जो प्राइस के हैं, राइट? अभी आपको क्या चाहिए इसमें, दिस इज योर एक्स, राइट? दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई. ये है तो बायवेरिएट एनालिसिस ये है, याद रखो. अगर मल्टीपल वेरिएबल्स लिए हैं यहाँ पे, फिर भी कोरिलेशन 2 चीजों के बारे में ही निकाला जा सकता है एक टाइम पे. कोरिलेशन कितने टाइम के, एक टाइम पे कितनी चीजों में होगा, 2 ही चीजों में होगा, राइट? अगर वो बहुत सारी चीजों में भी है तो उसका मतलब अलग अलग है. यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सारे वेरिएबल हमने एक साथ लिया है एनालिसिस में, पर मतलब इसका क्या है, कोरिलेशन 2 ही चीजों का है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ. मतलब प्रेफरेंस का वैल्यूएशन के साथ, प्रेफरेंस का चीप है क्या नहीं उसके साथ, प्रेफरेंस का इंडियन वैक्सीन चीपर देन फॉरेनर वैक्सीन के साथ, ऐसा ही कोरिलेशन निकलेगा. सो मैंने ये टेबल में डाल दिया, मैंने सिर्फ एक साथ लिया है, अलग अलग निकालने से अच्छा एक साथ निकाल लिया. तो मैंने इसको क्या किया, पियर्सन कोरिलेशन निकालो कर दिया, और मैंने बोला ओके. तब ये मुझे देगा पूरा का पूरा टेबल कोरिलेशन का. अब यहाँ आता है बारी तुम्हारे
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का। क्योंकि एक एक्सिस पे है प्रेफरेंस गिवन टू द वैक्सीनेशन एंड अदर एक्सिस पे है प्राइस के डिफरेंट फैक्टर्स। अब यहां देखो, दीज आर 6 कॉलम्स। 6 कॉलम में से एक तो ये अपना फिक्स्ड वाला है, आई एम गोइंग टू टेक वैक्सीनेशन, और यहाँ पे क्या है, आई एम गोइंग टू टेक वैक्सीनेशन। मतलब ये दोनों में क्या है, दोनों सिमिलर वेरिएबल है। ये दोनों सिमिलर वेरिएबल हैं तो दोनों का स्टैंडर्ड कोरिलेशन रहेगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। एक्चुअली इधर कोरिलेशन ही नहीं है, कोरिलेशन कोई वैल्यू दिखा रहा है, पियर्सन कोरिलेशन वैल्यू 1। अब इधर देखो, आई एम गोइंग टू टेक वैक्सीनेशन विथ वैक्सीन इज ओवर वैल्यूड। अगर किसी को लगता है वैक्सीन ओवर वैल्यू है, वो ओपिनियन और उसका वैक्सीनेशन लेने का प्रेफरेंस, उसमें निगेटिव कोरिलेशन है। कितने का? निगेटिव 7% का। ये परसेंट में डाल दो इसको, क्योंकि 100% की बात कर रहे हैं हम, राइट? सो ये टेबल को रीड कैसे करोगे? रोज टू कॉलम, रोज टू कॉलम, रोज टू कॉलम, रोज टू कॉलम, अगेन दिस रो टू दिस कॉलम। एक्चुअली ये ऊपर के 2 रो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये यहां से ऊपर ये जो इतना है ना, सॉरी, ये जो एक रो ही, ये वाली एक रो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सर रिपीटेशन है। फिर ये देखना, यहाँ पे जो 799 दिखेगा, यहाँ पे जो 79 दिख रहा है वो यहीं पे भी है, जो यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे है। तो ये रोज कॉलम का खेल है। आइदर यू कंसिडर दिस 3 कॉलम्स और दिस 2 रोज ओनली। इसका कोरिलेशन वैक्सीनेशन के ओवर वैल्यू के साथ कितना है? पियर्सन वैल्यू इतनी है, सिग्निफिकेंस इतना है। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। एक्चुअली कोरिलेशन अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अगर ये सिग्निफिकेंस वैल्यू सब 0.05 से नीचे नहीं है, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा कोरिलेशन नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। ये वैल्यू सिग्निफिकेंट ही चाहिए होती है। यहाँ पे नहीं है वो छोड़ दो, बट ये वैल्यू सिग्निफिकेंट ही चाहिए होती है। बट फिर भी आप फिलहाल के लिए कोरिलेशन वैल्यू को समझो। आई एम गोइंग टू टेक कोविड-19 वैक्सीनेशन is positively 8% dependent on free COVID-19 vaccination given by the government. अगर गवर्नमेंट फ्री कोविड-19 वैक्सीनेशन देता है तो मैं वैक्सीनेशन लेने के लिए जाऊंगा। ये 2 चीजों में रिलेशन कितना है? 8%। यहाँ पे कितना है? 22%। यहाँ पे कितना है? 2%, 7%, निगेटिव 2%। निगेटिव मतलब उन्होंने फ्री दिया तो भी मैं नहीं जाऊंगा, दैट इज निगेटिव। समझ में आ रहा है? Yes, sir. So this is all about correlation test. ये आप एक्सेल में भी कर सकते हो, एक्सेल में कर सकते हो, बट एक्सेल में ये प्रॉब्लम हो जाता है, एक ही बार कर सकते हो। मतलब ये दिस वन एंड दिस वन इतना ही निकाल पाओगे, फिर इसके लिए अलग से निकालना है, फिर इसके लिए अलग से। वो भी ड्रैग करके हो जाता है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट वैल्यूज टाइप करते बैठनी पड़ेगी सबकी सब एवरी टाइम। एंड इफ योर वैल्यूज आर लाइक 500-600 वैल्यू, यहाँ पे 65 वैल्यूज लिया हमने, राइट? अगर 600 है तो प्रॉब्लम है ना? हाँ सर। चलो, so should I close it now? This is Yes, only sir. for correlation test. Similarly, we will learn all the kind of analysis here. Look at this. डिस्क्रिप्टिव में जाओगे, फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रिप्टिव, पाई चार्ट, बार चार्ट, सब कुछ मिलेगा। टेबल्स में आपको इस सॉफ्टवेयर में पूरा एनालिसिस हो सकता है। मीन, कंपेयर मीन्स में जाओ, मीन एनालिसिस, टी टेस्ट, एनोवा, वन वे, बाय वे, पेयर सैंपल टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट, राइट? कोरिलेशन में जाओ, रिग्रेशन में जाए, लिनियर रिग्रेशन, कर्व रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सब कुछ इधर है। फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर में जाओ, फैक्टर एनालिसिस अवेलेबल है। स्केल में जाइए, रिलायबिलिटी, नॉर्मेलिटी, वैलिडिटी, सब कुछ चेक कर सकते हो यहाँ से आप। सो दिस इज द सॉफ्टवेयर which helps you a lot in dealing with your data, and this is a basic software। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट मैं आपको बड़े बड़े चीजें इसलिए नहीं बताता हूँ कि ये हजम करने में प्रॉब्लम है, नहीं तो दिखाने के लिए मैं यही चीज आपको आर में भी दिखा सकता हूँ, पाइथन में भी दिखा सकता हूँ,
आर प्रोग्रामिंग में तो आराम से एमओस में दिखा सकता हूँ, बट आप इसको समझो पहले। अगर बेसिक पता चल गया तो आगे की बात हो सकती है। ओके, एनी डिफिकल्टी? No, sir. ओके, सो कितने लोग हैं? 18। नए नए कितने लोग हैं? कोई? नो बडी डेयरिंग टू रेज द हैंड। कभी खुशी कभी गम, जिस दिन आना है आए, जिस दिन नहीं आना है नहीं आए। कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं गाइस, याद रखो, कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको, आपका एग्जामिनेशन रिटर्न में होना चाहिए, तब आपको पता चल गया होता कि BRM, RM, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये सब्जेक्ट्स क्या चीज़ है। आपका एग्जाम अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन हो रहा है, तो इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं लग रहा है आप लोगों को। सर BRM सर एक्चुअली मतलब हैंड रिटन पे ही होना चाहिए, BRM वही बोल अकाउंटिंग। रहा हूँ मैं, रिटर्न में होना चाहिए था एग्जामिनेशन, तब मजा आता है। सर एक्चुअली ये तो सब रिटन वाला ही है सर, एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपोजर है ना, बाद बाकी सब तो थियोरी सब्जेक्ट्स वाले हैं। नहीं नहीं, एग्जाम रिटर्न में होता है तो पता चलता है ना, लिखने के टाइम पे वर्ड्स ही याद नहीं आते। वहाँ पे तो ऐसा नहीं है मार्केटिंग इज एडवर्टाइजिंग एंड एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग लिख दो, वहाँ पे तो टेक्निकल चीज ही लिखनी पड़ेगी, राइट? तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चलो, नो वरीज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग एंड Thank you, टेक sir. केयर, गुड नाइट। एनी क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन बोलना? जाओ भागो, बोलना बहुत टाइम हो गया तुम्हारा। फिर भी मेरे पास 1 मिनट है, ऑफिशियली यू कैन नॉट आस्क मी टू लीव।